نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، اس وقت ہر بندہ پریشان ہے اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش کوئی نہیں کرتا، بس پریشان ہی پریشان، امیر بھی پریشان، غریب بھی پریشان۔ امیر پریشان ہے کہ انکم کم ہو رہی ہے، غریب پریشان ہے کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے، جو ملک میں ہیں وہ پریشان ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ویزا لگ جائے اور باہر نکل جائیں، اور باہر جو ہیں وہ صبح و شام پریشان ہو رہے ہیں کہ زندگی تو اپنے وطن کی ہے، کسی نہ کسی طریقے وطن میں روزگار ملے، ہم اپنے وطن چلے جائیں۔ شوہر بیوی سے پریشان ہے کہ بیوی بات نہیں مان رہی، اور بیوی شوہر سے پریشان ہے کہ وہ صحیح تعاون نہیں کر رہا۔ استاد شاگردوں سے پریشان ہے کہ یہ ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، کام صحیح نہیں کرتے، اور شاگرد استادوں سے پریشان ہیں کہ انہوں نے تعلیم کو بزنس بنایا ہوا ہے، یہ پڑھائی کی طرف، تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس طرح جس کو بھی دیکھو پریشان ہی پریشان نظر آئے گا، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ان پریشانیوں سے نکلیں کیسے، ان سے نجات کیسے حاصل کریں۔ کچھ لوگ پریشان ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ اب مہنگائی کا تو رونا ہر بندہ روتا ہے، پہلے تو غریب روتے تھے، اب امیر بھی رو رہے ہیں۔ پٹرول مہنگا ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئیں، آٹا، سبزیاں، دالیں، ضروریات کی چیزیں مہنگی ہو گئیں، یہ پریشانی ہے۔ اب یہ مہنگائی ایسی ہے، اس کو ہم نہیں روک سکتے، اس کو ہم کم نہیں کر سکتے۔ کیا پٹرول مہنگا ہو گیا، روڈ خالی ہو گئے ہیں، روڈوں پہ گاڑیاں نہیں چل رہی، یا گاڑیاں بہت کم ہو گئی ہیں؟ اسی طرح سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے ریسٹورنٹ، کیا ان میں رش کم ہو گیا ہے؟ کھانے پینے والے لوگ نہیں، ریسٹورنٹ بند ہو گئے ہیں؟ اسی طرح سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کیا تعمیراتی کام رک گئے ہیں؟ پہلے سے بھی زیادہ ہیں۔ کیا لوگوں نے فضول چیزیں، پان، سگریٹ وغیرہ چھوڑ دیا، گٹکا چھوڑ دیا؟ پہلے 100 روپے کا گٹکا کھاتے تھے، اب وہ 200-300 کا کھاتے ہیں۔ کس چیز میں کمی کی ہے؟ کون سی آپ نے تدبیر کی ہے؟ اس مہنگائی سے نکلنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا ہے؟ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمیں یاد ہے، بازار جاتے تھے، ہاتھ میں تھیلا لے کے جاتے، سبزی لاتے، بازار سے سودا صرف لاتے۔ اب 5 منٹ کا راستہ ہو، بائک کے بغیر کوئی جاتا نہیں، پیدل چلنے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا۔ اب اتنی موٹر سائیکلیں ہو گئی، گلی کوچے میں یہی ہیں، بازاروں میں روڈ کراس نہیں کیا جاتا، پھر کہتے ہیں کہ پٹرول مہنگا ہو گیا۔ مہنگا نہ ہو تو کیا ہو؟ کون سی چیز ہم نے اپنی کم کی ہے؟ ہمارا ڈرائنگ روم ایسا ہو، بیڈ روم ایسا ہو، کچن ایسا ہو، واش روم ایسا ہو، کروڑوں روپے تو ہم نے ان چیزوں پہ خرچ کر دیے، پھر روتے ہیں کہ مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، دہائی ہے، دہائی ہے۔ یہ صورتیں نہیں ہیں، یہ طریقے نہیں ہیں مہنگائی سے نکلنے کے لیے۔ یہ تدبیر کرنی ہوگی۔ اب دیکھیں، حکومتوں کو برا کہہ رہے ہیں، وہ پہلی حکومت اچھی تھی، اس نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔
आर्मी वालों ने मुल्क के हालात ख़राब कर दिए, वापडा वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, गैस के महकमे ने तबाही मचा दी, पुलिस ने हालात बिगाड़ के रख दिए, दूसरों को बुरा कह रहे हैं। क्या बाकी अवाम सारे फरिश्ते हैं, अल्लाह वाले हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे खुद तो सोचो, उसी दरख्त की शाख पे बैठे हो और उसी को काट रहे हो, फिर रो भी रहे हो, चिल्ला भी रहे हो। महंगाई को आप लोग कम नहीं कर सकते। जो लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, और जो लोग इस महंगाई को ख़त्म करने के इख्तियारात रखते हैं वो भी नहीं कुछ करते। और जो लोग बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे, बाहर चले गए हैं, वो ये CLC से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम उनसे निकल गया है, लेकिन उनके बैठे बैठे डॉलर बढ़ रहे हैं, पाउंड बढ़ रहे हैं, दिरहम और दीनार बढ़ रहे हैं, उन्हें तो परवाह नहीं, वो तो खुश होते हैं, और बाकी लोग परेशान हैं। इस परेशानी से निकलने का ये तरीका नहीं। जिन्होंने कर्जे दिए हुए हैं, जिन मुल्कों ने कर्जे दिए हैं, IMF ने कर्जे दिए हैं, वो अपनी शराइत मनवा रहे हैं और सूद पर सूद बढ़ रहा है। ये ऐलाने जंग है अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ ऐलाने जंग करके कोई कामयाब हो सकता है? आप देखें, पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान, अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है, वहाँ डॉलर की कीमत देखें, अपने मुल्क पाकिस्तान में देखें। इस वक्त वहाँ अफ़गानिस्तान में जबकि हालात ये थे, अमेरिका जब निकला सारा कुछ ले गया, जो बाहर ममालिक में उनकी करेंसी थी उसको भी बाउंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। लोग कहते थे इनकी माइशत तबाह हो जाएगी, ये बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लोग भूखे मर जाएंगे। क्या ऐसा हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तमाम हुकूमतों ने कहा हमसे कर्जे ले लो, हम मदद करेंगे, तावन करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन अल्लाह से ऐलाने जंग नहीं करेंगे। आज देख लें, वहाँ डॉलर 80 रुपए का है और यहाँ पाकिस्तान में आप देख लें डॉलर तकरीबन 280 या 282-83 तक है, 300 के लगभग पहुँच चुका है। अब ये क्या है? इन्होंने अल्लाह के साथ जंग शुरू कर दी, अल्लाह के साथ मुकाबला शुरू कर दिया। क्या अल्लाह के साथ ऐलाने जंग करके कोई कामयाब हो सकता है? महंगाई से निकलने का एक वाहिद तरीका ये है कि सूद को छोड़ दें, इसको तर्क कर दें, इसके ऊपर लानत भेजें कि हम ज़िंदगी भूख से गुजार लेंगे, हम ज़िंदगी तकलीफ़ों में गुजार लेंगे, हम ज़िंदगी परेशानियों में मुब्तला होके गुजार लेंगे, लेकिन सूद वाली लानत अपने ऊपर नहीं डालेंगे। सूद को हम कभी भी नहीं लेंगे। जब तक ये अहद नहीं करेंगे उस वक्त कामयाब नहीं हो सकते। उनकी नालायकियाँ तो अपनी जगह, हुकूमत की नालायकियाँ, अफसरान की नालायकियाँ, उनकी खराबियाँ अपनी जगह, लेकिन अपने आप को खुद तो सुधार सकते हो, अपने अखराजात को तो कम करो। घर में अगर 4 आदमी हैं तो 4 बाइकें रखी हुई हैं, एक से गुजारा करो। अगर मालदार हैं, घर में 7-8 गाड़ियां हैं तो एक गाड़ी इस्तेमाल करो, बाकी फालतू चीज़ों को बेच दो। ये न सोचो कि हमारा आला दर्जे का फर्नीचर हो, ऐसी सूरत हाल हो, ऐसा बेडरूम हो, ऐसा ड्राइंग रूम हो। ये फालतू चीज़ों को छोड़ दो। ये ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों के अंदर कमी लाओ, खाने पीने की चीज़ों में कमी करो।
चीनी का इस्तेमाल कम कर दो। और इसी तरह चावल, आटा, ये जो हम इसके पकोड़े, समोसे और ये तली हुई चीज़ें खाते हैं, ये पराठे जो सुबह शाम खाए जाते हैं, बग़ैर मुर्गी के तुम्हारा हलक से नीचे कोई उतरता नहीं है। सब्जियां खाओ, सादा चीज़ें खाओ, बिरयानियों को छोड़ दो। देखो मुल्क तरक्की करता है कि नहीं। चीज़ों के अंदर कमी जब आएगी, चीज़ें सस्ती होती हैं या नहीं। एक साल के अंदर अंदर मुल्क सुधर सकता है, हालात सुधर सकते हैं। घर के सामने तुम्हारे गटर उबल रहे हैं, गलियां गंदी पड़ी हुई हैं, और पूरे मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करना चाहते हो। इस तरह हालात सुधर सकते हैं? कभी भी नहीं सुधर सकते। सूद की लानत को छोड़ दो, ज़कात अदा करो, सदक़ात और खैरात का एहतमाम करो। देखो माइशत कैसी सुधरेगी। अब ये इख्तियात करते करते फिर आपको मैं एक ताकतवर वजीफ़ा भी बताता हूँ। जब इख्तियात करोगे, इख्तियाती तदाबीरें इस्तेमाल करोगे तो वजीफ़े भी काम करेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ। सारी रात खड़े होकर दुआएं करते हो, या अल्लाह मुझे नेक बेटा दे दे, साले बेटा अता फरमा, और शादी करते नहीं हो। अल्लाह आपको बेटा कहाँ से दे देगा। इसी तरह आप इख्तियात नहीं करते, तदबीर नहीं करते, वैसे ही वज़ाइफ़ों के ऊपर लगे हुए हैं। इख्तियात करें, तदाबीर इस्तेमाल करें, फिर वजीफ़ा सुन लें तवज्जो से। पूरा मुल्क करे, मुल्क का बादशाह भी करे, मुल्क के जितने भी ओहदेदारान हैं वो भी करें, गरीब लोग करें, एक मज़दूर से लेकर सदर और वज़ीर आज़म तक ये सारे लोग वजीफ़ा करें। कौन सा वजीफ़ा? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वही मेरा कारसाज है। तदाबीर इस्तेमाल करें और नमाज की पाबंदी करें, जिसका हुक्म अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर 700 से ज़्यादा मरतबा दिया। सदक़ात और खैरात का एहतमाम करें और सूद की लानत को छोड़ दें। इस वजीफ़े को करें, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वही मेरा कारसाज है। ये वजीफ़ा आपने असर की नमाज के बाद 450 मरतबा पढ़ना है और पूरी ज़िंदगी का मामूल बनाना है। मेरी मोहतरम माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ सब ये वजीफ़ा करें। छोटे से लेकर बड़े तक सारे लोग करें, पूरा मुल्क करे, पूरा आलम इस्लाम इस वजीफ़े को करे और ये एहतियाती तदाबीर भी इस्तेमाल करें। हालात भी सुधर जाएंगे, आप सुरखरू हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, मुल्क तरक्की करेगा, इज्जतें मिलेंगी, अल्लाह राज़ी होगा। जब अल्लाह राज़ी होगा, हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।